Hello everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. तो लास्ट टाइम हमने असाइनमेंट 7 किया था. हेलो. Yes, sir. ओके. असाइनमेंट 8.2 आप लोगों ने कर लिया है क्या? 8.2 भी कर रहे हैं ना आप साथ में? अभी सर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है सर. हेलो. कर रहे हैं. ओके. तो असाइनमेंट 8 बाकी है, ठीक है हमारा. तो अभी कुछ थोड़ी देर थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में समय बचेगा तो असाइनमेंट डिस्कस करेंगे. ओके. Yes. यस सर. 3 क्लासेस हो गई, अभी तक कुछ थ्योरी नहीं हुई, तो इसीलिए लेट्स डू सम थ्योरी. ओके. ओके. So now we are going to start another topic, which is central force motion. Central force motion. Activity किए हैं. What? क्या कह रहे हैं? सर आप होस्ट नहीं हो तो सर आपकी स्क्रीन बार बार जा रहा है. अभी हो गए. स्क्रीन क्या स्क्रीन दिख नहीं रहा आप लोगों को? सर आप दिख रहा है. Okay. Central force motion. Okay. So what is a central force? बताइए मुझे. Okay. सेंटर के वो टेक्ट कर. Okay. The central force is two conditions. One is, लिखिए आप. लिखिए. If a force is directed towards or away from a point. Okay. Force is directed towards or away from a point. ठीक है. तो F जो है directed towards or away from a point. ठीक है. That means what will be the direction of, this is suppose point and this is point P on which the force will be calculated. Okay. So the force is directed towards or away from the point. So what are the possible directions of the force? Either it is r cap or it is minus r. Okay. R cap is away from the point and minus r cap is towards the point. Okay. And second is, लिखिए, F depends on only on the distance from the point. The distance from the point, which is R. So this is R. Okay. So पहली condition आपकी ये है कि force is directed towards or away from the point. That means force is either in r cap or minus r cap. Second condition is F depends only on
the distance from the point. Okay, that means F is only function of R. Okay, F is only function of R. F can be written in terms of R only. Okay, that means it is theta and phi independent. समझ गया? In general, 3 dimension, which are 3 coordinates which we can do, which are R, theta, and phi. But here, the force depends only on the distance between the points. Then it is a central force. So these 2 are the conditions for central force. Okay. Now tell me, what are some examples of central force? So electrostatic force. Electrostatic force. Gravitational Yeah. force. Gravitational. Electrostatic force. Gravitational force. Okay. In electrostatic, we can see that if there is a charge q here and there is another charge q here, then force is directed away. Okay. What is force? K q q by r square, and direction will be r cap. Okay. Another is gravitational force also. Okay. So here it is m. There is another mass m. Okay. This is r. So what is F gravitation? G mm by r. G mm by r square. Plus r cap होगा, minus r cap होगा? Minus r. Because it is attractive force. Okay. So the force can either be plus r cap or minus r cap. Okay. Now tell me, spring force, is it a central force? बताइए. Yes, sir. Spring force is also a central force because suppose there is a point O which is fixed, from which a spring is connected, and there is another mass m which is connected. Okay. So सबसे पहले बताइए, तो इस स्प्रिंग फोर्स जो है इस मास के ऊपर या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा. ओके. इन्वर्ट कब लगेगा? जब स्प्रिंग क्या है? इलोंगेटेड है. Yes, sir. आउटवर्ड कब लगेगा? जब स्प्रिंग क्या है? कंप्रेस्ड है. ओके. सो हियर स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो अ व्हाट? सेंट्रल फोर्स. और उसकी वैल्यू कितनी होगी? सपोज नेचुरल लेंथ L है इसकी, है ना? तो कितनी होगी? माइनस R तो टोटल डिस्टेंस है, माइनस L जो है नेचुरल लेंथ है, और R कैप. ओके. तो R अगर ग्रेटर देन L है, देन दैट मींस इट इज इलोंगेशन. तो वहां पर माइनस R कैप में फोर्स होगा, मतलब उसको अंदर खींचने की कोशिश करेगा माइनस R कैप में. इफ R इज लेस देन L, then it will be plus R cap because it is a compression. Okay. So these are the examples of central force. सर जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स लिया है उसमें नेगेटिव साइन सर अगर हम दूसरे वाले मास को कंसीडर करते हैं वो तो सर पॉजिटिव आर कैप में लगेगा. ग्रेविटी attractive फोर्स क्या force- होता है? माइनस GMM by R स्क्वायर ही तो होता है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स मास नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर. तो फिर No, sir. Minus sign only indicates in nature of attraction. बिल्कुल सही कहा आपने. माइनस indicates that it is a attractive force. So gravitational force is always in minus R cap. Electrostatic force is in R cap depending on Q and capital Q and small q. Depending on them, it can be plus or minus. That sign is incorporated in Q's. But here gravitation mass to always positive. बट सर That means- इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम उसको मॉड्यूलस लेते हैं शायद चार्जेस का, वो इंडिपेंडेंट होता है क्यों से? Electrostatic में K Q Q by R square होता है, and if it is Q is positive, then it is incorporated in that only. ओके सर. सर स्प्रिंग फोर्स का सर डायरेक्शन एक बार फिर से बता दीजिएगा. देखिए स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स सबसे पहली बात तो आपको बात समझ में आ गई कि इलोंगेशन होगा. ओके. तो इलोंगेशन होगा तो R ग्रेटर देन L होगा. यस सर. R ग्रेटर देन L होगा तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और यहाँ पे माइनस है, तो डायरेक्शन माइनस R कैप में हो जाएगी. हाँ सर.
मतलब होना चाहिए कि इलोंगेशन होगा तो उसको अंदर की तरफ खींचेगा स्प्रिंग माइनस आर कैप में। यस। अगर कंप्रेशन हुआ तो आर इज लेस देन एल, हम्म। तो आर इज लेस देन एल, तो ये टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस आर कैप, तो कंप्रेशन होगा तो उसको उधर की तरफ धगाने की कोशिश करेगा ये स्प्रिंग। ओके, Sir, Yes. all restoring force are an example of central force. ऑल Restoring force are example of central. रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या कह रहे हो? Restoring force means जो restoring force होता है वो भी तो एक सेंटर की तरफ ही टुवर्ड्स लगता है ना, तो भी तो सेंटर हाँ। फोर्स मतलब। हाँ, रीस्टोरिंग का मतलब आप सेंटर की तरफ एक्ट करता तो सेंट्रल फोर्स हो गया। यस ओके, लिख लिया सब? नहीं है? यस सर। Okay. Now let us do some properties of central force. Properties of central force. Okay. So first important property is, okay, the central force मतलब F हमने देखा है is a function of R और direction is R cap. Okay, this is FR and direction is R cap. Okay, now we will look at some of the important properties. Okay, so the first property is del cross F is equal to 0. Okay, that means curl of the central force is 0. Now, if any quantity's curl is 0, that means that force is what? Conservative. Conservative. कंजर्वेटिव। That means F is conservative. So if in the system the force is conservative, that means total energy is conserved. Yes, sir. Total energy is conserved. Okay, so first important point is this. Now let's look at second important point. Okay, what is tau? That means torque. What is torque? R cross P. Torque is R cross F, which is R cross FR R cap. Now tell me, what is R cap cross R cap? Zero. जीरो। That means tau is 0. Okay. And what is tau in terms of angular momentum? dl by dt. डीएल बाई डी टी। dl by dt. So this is equal to 0. Okay. dl by dt is equal to 0 means L is what? Constant. Conserved or constant. Okay. Okay. So in central force motion, angular momentum is conserved. Okay. Because torque is 0. Because the force is passing through the center. It is in R cap direction. Okay. Now tell me, L is conserved. So L is some value L times direction n cap. So if any vector is conserved, that means its magnitude is also conserved and its direction is also conserved. Okay. यस सर। This is also conserved. And this is also conserved. Now tell me, if a particle is moving on a plane, then what is the direction of angular momentum? Perpendicular to the plane? Yes, sir. Perpendicular to the plane, and it is saying that n cap is conserved. But that means that direction is conserved. Okay.
That means what? Particle is moving in a same plane. Particle is moving in a conserved plane. Okay. So one more important point we got from the angular momentum conservation, that the plane of the motion does not change. That means it cannot happen that once particle is moving in this direction, in this plane, and then particle is moving in this plane. Otherwise, first angular momentum will be this, and then will be this. So direction will change. So angular momentum will not be conserved. That means once the particle starts moving in a plane, it will remain in that plane only. It will not change the plane. Okay. So these are two properties. Now let's try third property. Third property. Aerial velocity. Aerial velocity. It is written as dA over dt. Okay. And what does it signify? It is rate of area swept by the particle. Okay. That means in a small time interval dt, how much area is swept by the particle. For example, if the particle is here at time t, okay, and after time dt, particle goes to this point, okay, this is t plus dt, then how much area is swept in this time ta? Okay. Now tell me, if this is r, if in time dt, this is the angle which is swept, then what is dA? If this is r and this is d theta, then what is this r d theta? Yes, sir. Okay. And this is a small triangle. So what is the area of a triangle? Half into base. Base is what? R d theta. And height is r. Okay. So tell me, what is dA by dt? Here 1 by 2. There are 2 r's, that means r square. 1 by 2. 2 r's, that means r square. And d theta by dt. D theta by dt is what? Theta dot. Okay. So dA by dt is this. Now tell me, what is angular momentum of a particle moving in a plane? L is m omega r, right? So L is m into theta dot is r. So what is theta dot? M omega r square, sorry. M omega r square. Okay. So what is theta dot from here? L by mr square. So if you put that quantity here, then dA by dt will be 1 by 2 into r square into theta dot is L over mr square. So from here we'll get dA by dt is equal to L over 2m. Now tell me, L and m are conserved quantities, mass is same. L is what? Magnitude of angular momentum. It is conserved or not?
Yes, sir. That means dA by dt is also conserved. Okay. Yes. The third important property is that in central force motion, the aerial velocity is also constant. Okay. These two formulas you should remember. dA by dt is half r square theta dot and dA by dt is L over 2m. और ये तो आपको क्वांटिटी पता ही है पहले से कि what is the relation between theta dot and L. Okay. लिख लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं. Sir, plane is conserved means throughout the motion plane will be same. Yes, that means that. क्योंकि प्लेन अगर चेंज होगा तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज होगी. समझ गए? हाँ, yes sir. But according to central force motion, the angular momentum is conserved. ठीक है. इसका मतलब ये है, इस क्वांटिटी का मतलब है कि plane of motion remains same. Okay. आगे चलें? Yes, sir. Has everybody written now? Okay. So these are the three important properties. आपको याद रखना है. Conserved, conservative force है. Torque is 0. That means angular momentum is conserved. Energy is conserved because it is conservative. And third is aerial velocity is conserved. Okay. Okay. So now let's move ahead. Now let us write down equation of motion. एक्सक्यूज मी सर, Yes. यहाँ पे एरिया स्वेट बाय द पार्टिकल, ये थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा है. देखिए पार्टिकल इस तरह से प्लेन में मूव करेगा तो dt टाइम में यहां से यहां चला गया पार्टिकल सपोज. यस सर. तो dt टाइम में उसने प्लेन में कितना एरिया कवर किया, दैट इज द एरिया स्वेप्ट. ओके. ओके. यस. पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है तो dt टाइम में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गया है, तो गया है जब, तो इस r वेक्टर ने कितना एरिया स्वैप कर लिया है. जो वाइपर टाइप होता है ना आपकी कार में, तो दैट इज r वेक्टर. तो वो इधर से इधर गया तो उसने कितना एरिया कवर कर लिया, दैट इज द एरिया. सर वो तो ये कंजर्व्ड है क्वांटिटी एरिया वेलोसिटी. यस, दैट एरिया बाय dt, रेट ऑफ एरिया इज कंजर्व्ड. तो सर अगर हम ये तो मतलब कोई टाइम इंटरवल में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो चेंज होगा ना, मतलब No, किसी टाइम में ज्यादा that is होगा. the case, right? किसी भी टाइम इंटरवल पे देखिए dA by dt always remains same. ओके सर, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे ना, उससे पता dA लगेगा. by dt always remains same. ओके सर. जैसे जैसे सर कार के जो वाइपर का एग्जांपल है, जैसे वो सर उसका चेंज नहीं होता है. No, that is just example. That is not a central force. I am giving that example I gave to explain what is the area swept, not because it is a Yes. central force. क्योंकि वो सर एक तरह से देखा जाए तो वो भी कंजर्व ही होता है, मतलब. No, that is changes में- conserved because of different reasons. Because उसकी constant omega होता है इसलिए. Yes. हाँ. But here the reason is something else. Okay. Now let's write down equation of motion under central force. So EOM, equation of motion under central force. Okay. So central force, that means ये बात तो पक्का है कि F vector is FR into R cap. Okay. So the magnitude depends only on R and direction is R cap. Okay. Now, tell me what is the radial equation of motion? Radial equation of motion. Now first, if a particle is moving on a plane, then what are the suitable coordinates to explain the motion? Plane floor. Plane polar? Plane polar. Okay. So what are the suitable coordinates? R and theta. Okay. So the radial equation of motion is FR is equal to
m into AR. Okay. So value of FR is FR is equal to m into what is AR in plane power? R double dot tan theta to minus R Theta dot square. So this is the radial equation of motion. Now tell me, what is the transverse equation of motion? Transverse equation of motion. So now tell me, the force is only in r cap direction. So what will be the component of force in theta cap direction? 0. 0. F theta is equal to ma theta. So F theta will be 0, right? Is equal Yes, to sir. m into what is a theta? 2r dot theta dot 1 by r. There is one more formula, right? So 1 upon r d upon dt r d square theta upon dot dt into r square theta dot. r square theta dot. Okay. So that means what? d by dt of r square theta dot is 0. Okay. इसका मतलब क्या है कि r square theta dot is constant. Okay. और हमने देखा था क्या होता है r square theta dot? dA by dt is 1 by 2 r square theta dot. तो आप समझ में आ रहा है Yes, sir. क्यों कांस्टेंट है r square theta dot? Because this is nothing but 2 into dA by dt. और dA by dt आपका कांस्टेंट है. समझ गए बात? ओके. तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस, ठीक है, और यही सर, क्या इन होगा? दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पे इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा क्या? इन दो इक्वेशन को, these are equations Solve. of motion, that means F बराबर ma. Equation of motion means F बराबर ma. ओके ओके यस Yes. So आपको ये चीजें याद रखनी है. कौन सी चीजें? R square theta dot is मतलब half R square theta dot is dA by dt is L over 2m. तो ये भी कंजर्व्ड है, इसलिए ये भी कंजर्व्ड है और ये तो कंजर्व ही. तो तीनों आपस में कनेक्टेड है. किस तरीके से कनेक्टेड है आपको बता दिया मैंने. ओके, लिख लिया सबने ये? लिख लिया सबने ये? Yes, sir. Yes, sir. So now let's move to the next concept, which is differential equation of orbit. Orbit. Okay. Or trajectory. Now tell me, what is equation of trajectory? What is the meaning of equation of trajectory or equation of path or equation of orbit? उसका मतलब क्या होता है? सर जिससे मतलब वो जो हमें पाथ coordinates So It जिससे is हमें the particular equation Time which independent- connects time independent, all the sir. coordinates involved in the system. For example, if the coordinates are y and x, then it connects y to x. If the coordinates are r and theta, then it connects r and theta. Okay. So it is the equation
which connects the coordinates in which time is not explicitly present. Okay. So what is differential equation of orbit? It is the differential equation which connects coordinates. तो हमारे यहाँ पर कौन कौन से coordinate है? R और theta. Okay. So now we are going to find a differential equation which connects R and theta. Okay. Okay. So it is the differential relation between R comma theta in which time is not explicitly present. So let's start with equation of motion. Equation of motion कहता है हमारा कि FR is equal to MAR. Okay. So FR is F is equal to M into R double dot minus R theta dot square. Okay. This is it. Okay. तो अब हमें निकालना है. So here it is R double dot. That means double derivative of R with respect to time. Okay. So first let us see. So see, we have to find the differential equation of orbit जहां पर time is not present. है ना? मतलब R और थीटा के बीच में differential equation जहां पर time present नहीं है. इसका मतलब है कि हमें इस equation से time derivative को हटाना पड़ेगा. है ना? तो इस तरीके से हटाएंगे. dr by dt इसको मैं चेन रूल से ये लिख सकता हूं. dr by d theta into d theta by dt. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is nothing but dr by d theta into theta dot. So now tell me what is, and there is one more equation, which is L is equal to M R square theta dot. तो यहां से थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L over MR square. तो जहां जहां पर भी थीटा डॉट की वैल्यू है वहां पर L over MR square. ठीक है. That means dr by dt is equal to dr by d theta into theta dot is L over MR square. बट यहां पर R डॉट नहीं है, यहां पर क्या है? R डबल डॉट है ना. तो व्हाट इज d2R by dt square? It is d by dt of dr by dt. Okay. So it is d by dt of dr by dt is this dr by d theta into L over MR square. अब इस क्वांटिटी को मैं ये लिख सकता हूं, d by dt of some quantity is same d by d theta of the same quantity into d theta by dt, which is theta dot. Okay. So from here d2R by dt square is equal to d by d theta dr by d theta into L over
mr स्क्वायर इनटू थीटा डॉट को वापस से रख सकता हूं मैं एल और mr स्क्वायर, एल ओवर mr स्क्वायर। ओके, तो आपकी d2r बाई डी थीटा स्क्वायर ये आ गया, है ना। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगा यहां से, देखिए F इज इक्वल टू, तो F इज इक्वल टू m इंटू r डबल डॉट ये है, तो d बाय डी थीटा इंटू डी आर बाय डी थीटा इंटू एल ओवर एम आर स्क्वायर इंटू एल ओवर एम आर स्क्वायर माइनस r इंटू थीटा डॉट स्क्वायर। तो थीटा डॉट को मैं ये लिख सकता हूं, तो थीटा डॉट स्क्वायर विल बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर r to the power 4। Okay, so if we simplify from here, we will get F is equal to there will be one m will be cancelled. Okay. So it will be, and L will be taken out. So it will be L square divided by mr square, L square divided by mr square into d by d theta into सर dr m by उधर भी कैंसिल होगा ना, हैं? सर m उधर भी कैंसिल होगा ना, तो राइट वाले टर्म माइनस r l स्क्वायर बाई m स्क्वायर r पर 4 वहां पे भी m एक कैंसिल होगा। हाँ you're right, एक m यहाँ पर भी है ना, हाँ तो यहाँ पर भी कैंसिल होगा एक m, तो माइनस एल स्क्वायर बाय एम आर क्यू। Okay, so this is the equation we got. Okay, now अब देखिए, लिख लिया सबने ये? यस सर। सर नो सर, सर एक सेकेंड। हाँ सर लिखिए। सर ऊपर से थर्ड लाइन कैसे लिखी है? कहाँ से थर्ड लाइन, जो बॉक्स में है, सर उससे ऊपर वाली। डी बाई डी थीटा, हाँ सर। वो चेन रूल लगाया मैम मैंने वापस से। किसी क्वांटिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, उस क्वांटिटी का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू थीटा का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। यस सर। ओके, डन सर। हो गया। ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, कॉपी कर सकते हैं क्या? सर एक बार ये लास्ट वाली लाइन एक्सप्लेन कर देना। क्या? सर लास्ट वाली वाली? एक्सप्रेशन एक्सप्लेन। यस सर। हाँ, सर ये क्या? ये कैसे है सर? यहाँ से आया, कैसे आया मतलब? सर एक बार चेक करना पड़ेगा सर, रुकिए। तो इसमें क्या डाउट है आपको, कैसे आया ये? सर उसमें m कैसे मतलब कैंसिल हुआ लास्ट वाला टर्म में, जो सेकंड लास्ट टर्म है? जस्ट 1 मिनट। हाँ क्या कह रहे हैं? वो सेकंड लास्ट टर्म में जो है ना, लास्ट वाला टर्म, हाँ तो m को कैंसिल कर सकते हैं ना, यहाँ पे, यहाँ से और सर यहाँ से m लास्ट cancel। वाला सर, लास्ट वाला में जो r क्या वाला? r क्रॉस। यस सर। हाँ तो यहाँ पर भी तो ये m टोटल मल्टीप्लाई में ना। ओके सर, ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके,
सो यहाँ से आपका एफ की वैल्यू आएगी, क्या है एफ की वैल्यू बोलिए एक बार। एल L square by mr square ओके into d by d theta of dr by d theta into 1 by r minus of L square by mr cube. ओके ठीक है, थैंक यू। ओके सो नाउ दिस इज द इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर कोई टाइम प्रेजेंट नहीं है ना, है ना, हमने टाइम को एलिमिनेट कर दिया। किस इक्वेशन से एलिमिनेट किया हमने? एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन से, L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट से। ठीक है, अब इसको एक बार सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट पुट सर 1 by r होगा ना? क्या dr by d theta 1 by r square या 1 by r? 1 बाय आर स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर 1 बाय आर स्क्वायर था, मैंने 1 बाय आर लिखा था यहाँ पे, लेकिन आर स्क्वायर है नीचे। Okay, so now let's do one substitution, which is r is equal to 1 by u. Okay, so that this equation is slightly simplified. तो r is equal to 1 by u करेंगे तो बताइए dr by d थीटा कितना हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव -1 by u स्क्वायर और फिर du by d थीटा। ओके, तो अगर मैं इस इक्वेशन में अगर लिखूं तो f इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय एम, 1 बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u स्क्वायर इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ, है ना, dr बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 बाई यू स्क्वायर du बाई डी थीटा इंटू 1 बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय एम इंटू 1 बाय आर क्यूब विच इज यू। फ्रॉम हियर इट विल बी कैंसिल, तो आपका f इज इक्वल टू सर नेगेटिव साइन नहीं आएगा dr क्या? by d theta में। सर तो dr by bracket d में theta negative sign नेगेटिव। है। अच्छा यहाँ नेगेटिव है ना, तो yes sir, देयर विल बी माइनस साइन हियर, राइट? ओवरऑल माइनस साइन आ जाएगा ना? yes नहीं सर ब्रैकेट के अंदर आएगा ना? हाँ, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा तो बाहर भी तो आ जाएगा माइनस साइन। हाँ ओके। So it will be minus L square U square by M d2 U by dt d theta square, d by d theta of du by d theta, so d2 U by d theta square minus L square U cube by M। तो अब एक काम कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन को, किससे? पूरी इक्वेशन को माइनस इसको कर दीजिए आप माइनस एम एफ माइनस एम बाय एल स्क्वायर यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरी इक्वेशन को, माइनस एल एम बाय एल स्क्वायर यू स्क्वायर। तो यहां पर आएगा माइनस एम एफ बाय एल स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां तो आ जाएगा दिस इंटू दिस 1 हो जाएगा, d2 u बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यहां पर m से m कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, u क्यूब से u स्क्वायर कैंसिल होगा तो सिर्फ u बचेगा। ये तो आपकी इक्वेशन फाइनली आ गई, d2 u बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू माइनस mf बाय l स्क्वायर u स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। दिस इज द
differential equation of orbit. सर इसको याद करना पड़ेगा. हाँ, you should remember this equation. Differential equation of orbit. एक सर जो फंक्शन होगा 1/u का होगा ना. हाँ हाँ, तो यहाँ पर आपको याद रखना है u के साथ में, और साथ में ये भी याद रखना है कि u is what 1/r, है ना, ये भी याद रखना है आपको. और l क्या है यहाँ पे? l एंगुलर मोमेंटम. l is angular momentum. और f क्या है बताइए? f फोर्स लॉ है, रेडियल फोर्स. फोर्स लॉ, है ना, मतलब कि जो हमारा फोर्स है नेट वो है F R कैप. और m तो मास है और थीटा और r आपको पता ही है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इक्वेशन, विच इज d2u by d theta square plus u is minus mf by l square u square. ठीक है, तो इस इक्वेशन के यूजेस क्या हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसे? पहला तो ये कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट दिया हुआ है, मतलब r और थीटा के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो उस रिलेशन को यहां पर पुट करके आप फोर्स लॉ निकाल सकते हो, F, है ना. क्वेश्चंस करेंगे हम इसमें. सो इफ इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट is given, then we can find the force law. Okay, and if force law is given, then we can find equation of orbit. Okay, so equation of orbit given है, मतलब r और थीटा के बीच में आपको रिलेशन दिया हुआ है, तो उससे आप फोर्स लॉ निकाल सकते हो. और इनवर्सली भी ट्रू है, अगर आपको फोर्स लॉ दिया है तो यहाँ पर F वैल्यू रख के आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट निकाल सकते हो. ओके, नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन. इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि कैसे इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट दिया है तो आप फोर्स लॉ कैसे निकाल सकते हो. लिख लिया सब? नहीं है? Yes sir. Okay. Now let us do one question. If equation of orbit in a central force is given by R is equal to 1 by 1 plus cos theta, then calculate the force law. Now see, R is 1 by 1 plus cos theta. So what is U? U is 1 by R. So what is the value of U? 1 plus cos theta. 1 plus cos theta. 1 plus cos theta. Okay. Now tell me, what is the differential equation of orbit that we just derived? D2U by
d theta square plus u is equal to minus mf by l square u square. Okay, so हमें u पता है, हमें निकालना है d2u by d theta square. So बताइए u से यहां से मुझे बताइए du by d theta क्या होगा? माइनस माइनस साइन साइन थीटा। थीटा। 1 का तो 0 हो जाएगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। Minus sin theta. From here, what is the double differentiation? माइनस cos Is equal to minus sin theta का cos theta. ठीक है, अब इसको जो है हमारी इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में पुट कर दो. ठीक है, तो ये आएगा आपका माइनस cos थीटा प्लस u की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है? माइनस mf बाय l स्क्वायर u स्क्वायर. तो यहां से आपका आ जाएगा f इज इक्वल टू माइनस l स्क्वायर बाय m इंटू यू स्क्वायर. तो f आ जाएगा आपका माइनस l स्क्वायर बाय m, और u की वैल्यू क्या है? 1 बाय r है, 1 बाय r स्क्वायर है ना. तो फोर्स लॉ आपका क्या आ गया? F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर. सर यस, सर ये जो क्वेश्चन में r दिया है, r इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस cos थीटा. हाँ. सर अगर हम उसको मतलब नॉर्मल कार्टेशियन में चेंज करें तो सर वो एक पैराबोला का इक्वेशन आ रहा है. ओके, सर लेकिन f आ रहा है 1 बाय r स्क्वायर, तो मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में तो सर्कुलर ऑर्बिट्स रहते हैं. ग्रेविटेशन फोर्स में सर्कुलर ऑर्बिट्स रहते हैं, पैराबोला नहीं हो सकता क्या? ग्रेविटेशन में पैराबोला भी हो सकता है. विल सी व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्बिट्स इन ग्रेविटेशन. पैराबोला क्या हाइपरबोला भी हो सकता है. ओके सर. ओके, आप जो बोल रहे हैं कि सर्कुलर और एलिप्टिकल ऑर्बिट है, दे आर फॉर द केस व्हेन द सिस्टम इज बाउंडेड, मतलब एनर्जी इज नेगेटिव. ओके, ओके but if energy is greater than equal to 0, then it can be parabola and hyperbola. You're right. ओके सर. Okay, we'll जितने see the planar figure different होते equations होंगे. of orbits. Okay, we'll see what are the possible trajectories that particle can have under central force in gravitation. ओके सर. तो यहां से पता लग गया कैसे निकाला हमने फोर्स लॉ, है ना. हमें दिया हुआ था इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, मतलब r और थीटा के बीच में रिलेशन. Then by using the differential equation of orbit, we found what is the form of f in terms of r square. It is minus 1 by r square. तो अट्रैक्टिव है ये, पहली बात तो है ना, अट्रैक्टिव है क्योंकि माइनस है, और दूसरी बात 1 बाय r स्क्वायर की तरह जा रहा है, मतलब ग्रेविटेशन है, फोर्स ग्रेविटेशन की तरह. ओके, लिख लिया सबने ये? अब जिन्होंने लिख लिया है, they try this question. Try this question. क्वेश्चन है आपका थीटा r is equal to k, where k is some constant. Then find f, मतलब फोर्स लॉ, है ना. इस इक्वेशन को आप लोग ट्राई कीजिए एक बार. इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है व्हाट? थीटा इनटू r इक्वल टू कांस्टेंट. थीटा इनटू r इज इक्वल टू कांस्टेंट. माइनस 1 बाय r क्यूब. माइनस 1 बाय r क्यूब. ओके, जिन जिनका हो जाए एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा क्या आ रहा है.
Just 2 minutes. I'll be back. ओके, कर लिया सबने ये? यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. तो क्या आंसर आया आपका इसमें? -1/r³। -1/r³. -1/r³। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया वो इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, और ओके, नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप उसको याद रख सकते हैं। डायरेक्टली याद रख सकते हैं फॉर्मूले को कि इफ in central force motion, r to the power n is equal to k cos n theta, or
r to the power n is equal to k sin n theta, then इस फॉर्म का अगर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है, देन फोर्स लॉ इज गिवन बाय, फोर्स लॉ is given by, force law is given by F is proportional to 1 by r to the power 2n plus 3. डायरेक्टली याद रख सकते हैं आप। इस फॉर्म का अगर आपका इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है विच इज r to the power n is equal to k cos n theta and r to the power n is k sin n theta, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो बताइए मुझे इस केस में क्या होगा, r is equal to k cos theta, इस केस में डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, तो 1 upon r raised to power 5 n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो 1 है, 1 r to the power 1 is cos 1 theta, तो n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 है तो फोर्स आपका क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू 1 by r to the power 2 into 1 plus 3. सर वो साइन एन थीटा है या सिर्फ साइन थीटा है? Sin n theta, sorry, this is sin n theta, cos n theta or sin n theta. Then f is proportional to 1. अब बताइए इस केस में क्या होगा, f r is equal to 1 plus cos theta into k, 1 upon r power 5. है ना, 1 upon r power 5. क्या होगा बताइए, 1 upon r power 5. r is equal to k 1 plus cos theta को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 cos theta by 2. 2 cos square theta by 2 लिख सकता हूं, है ना, तो ये क्या आएगा, r to the power 1 by 2 is under root k under root 2k cos theta by 2, तो n की वैल्यू अब क्या है, so 1 by 2 1 by 2 है, r to the power n is cos n theta, तो n की पावर 1 by 2 है, तो n की पावर 1 by 2 है तो f क्या होगा, so 1 upon r raised to power 4 1 by r 2 into n 1 by 2 plus 3, तो proportional to 1 by r to the power. अब बताइए इस केस में क्या होगा, r is जो हमने किया था 1 by 1 plus cos theta, इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, तो देखिए r is 1 by 1 plus cos theta कितना होता है, 2 cos square theta by 2. cos square theta by 2, तो ये क्या होगा, r is equal to 1 by 2 cos की पावर minus 2 theta by 2, ओके, तो ये हो जाएगा आपका r to the power -1, सॉरी यहां से मैं लिख सकता हूं r to the power -1 नहीं, फ्रॉम हियर आई कैन राइट, यहां से मैं लिख सकता हूं 1 by r is 2 cos square theta by 2, हाँ 1 by r is 2 cos square theta by 2. सर हाँ यस, सर r की पावर n और थीटा का कोफिशिएंट सर यदि डिफरेंट हुआ तो क्या करेंगे, नहीं फिर इस केस में वो वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, फिर आपको जनरल इक्वेशन में रख के देखना पड़ेगा। ओके तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा r to the power -1 is 2 cos square theta by 2, ठीक है, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो r to the power -1 by 2 is 2 cos theta by 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, -1 by 2 -1 है, क्योंकि यहाँ पर भी मैं माइनस रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि cos प्लस थीटा और माइनस थीटा सेम होता है, yes sir तो r to the power -1 by 2 is 2 cos minus theta by 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, -1,
तो n की वैल्यू -1 है तो फोर्स लॉ क्या आएगा? 1/r²। 1/r⁴ into -1/2 + 3, तो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हमारा 1/r² आ रहा था, ये देखिए Yes, sir. 1 + 1/1 + cos थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सर आपने उसके बाद क्या किया सर, मतलब r² = cos θ/2 तक आ गया, फिर उसके बाद आपने एक तरफ -½ आएगा और दूसरी तरफ ½ आएगा। यहाँ पर हाफ आएगा तो cos θ/2 को cos -θ/2 लिख सकता हूँ ना मैं, ओके सर। है ना, क्योंकि cos x is cos -x। हाँ यस सर। तो आपको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि उस फॉर्म का हो जाए वो। अगर इस फॉर्म का नहीं आ रहा है तो आपके पास जनरल इक्वेशन तो है ही, d2u/something²। सर ये 2 जो होगा वो √2 में नहीं होगा? क्या हुआ? सर जो 2 है हाँ r हाँ, टू द पावर राइट, -12 राइट, ये यहाँ √2 होगा। √2 में होगा। सर इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जो दिए थे वहां पे r इंटू थीटा था कि सर r जो सफिक्स में था? जस्ट 1 मिनट। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? सर इसके पहले वाले जो क्वेश्चन दिए थे r इंटू थीटा इक्वल टू किया था सर कि r सफिक्स में था? हाँ सर यही। हाँ, क्या करना है इसमें? ये सर थीटा इंटू r है कि सफिक्स में r है सर? सफिक्स में r मतलब ये इंटू में r है सर। मल्टीप्लाई में है सर, उसकी तरफ थीटा थीटा सब्सक्रिप्ट के लिखा थीटा हुआ है। मल्टीप्लाई में है वो। ओके सब्सक्रिप्ट है या मल्टीप्लिकेशन में है वो? सब्सक्रिप्ट कहाँ से आ गया? वही कंफ्यूजन था उनको। इनटू में है वो, इनटू में। हो गया सर। लिख लिया सबने ये? ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास थोड़ा समय बचा हुआ है, तो जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो कर लेते हैं हम असाइनमेंट। सेंट्रल फोर्स का खत्म हो गया सर कंसेप्ट सारे। क्या हुआ? सेंट्रल फोर्स खत्म हो गए यहाँ सारे अरे कंसेप्ट। कहाँ सर, अभी तो शुरू हुआ है। सेंट्रल फोर्स खत्म कहाँ हुआ? बहुत बाकी है अभी तो। सर एक चीज पूछ रही थी टॉर्क में। टॉर्क में? यस सर, सर ऐसी ओवरव्यू पूछना था सर, ऐसे Yes. इसमें नहीं क्वेश्चन में नहीं। तो हाँ, सर जैसे हम टॉर्क डिफाइन करते हैं r क्रॉस f, ओके। सर हम उसको f क्रॉस r क्यों, मतलब ऐसी एंगुलर मोमेंटम को भी हम डिफाइन करते हैं r क्रॉस p। हाँ तो मतलब p क्रॉस r करते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। हाँ हाँ, बट सर हमने ये r क्रॉस p ही क्यों डिफाइन किया है स्टार्टिंग से, मतलब सर ये समझ में नहीं आया। नहीं वो तो एक डेफिनेशन है ना, एक डेफिनेशन है बस उसका, कन्वेंशन टाइप। सर थोड़ा इसमें मुझे क्या हुआ? जैसे हम किसी पॉइंट के अबाउट ना देख सर, टॉर्क में ही किसी पॉइंट के अबाउट ना देखे, किसी एक्सिस के अबाउट देखें तो सर उसमें फिर डिस्टेंस कैसे लेंगे? एक्सिस से डिस्टेंस ले लेंगे। तो सर मान लीजिए कि सर एक्सिस से डिस्टेंस जैसे हर एक पॉइंट पे सर अलग अलग पॉइंट्स हैं एक्सिस पे, और अलग अलग पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे तो डिफरेंट आ रहा है, तो फिर उस नहीं, केस में क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना r क्रॉस p में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो वो तो एक ही होगा यानी कि। हाँ सर प्रॉब्लम अब जो मतलब हम लोग जो लेटरल फोर्स मोशन का सर जो प्रॉब्लम करेंगे तो सर उसमें सर पता कैसे चलेगा कि u का वैल्यू मतलब कहाँ पे रखना है और कहाँ पे मतलब नहीं रखना है? किसमें सर जैसे कि जो हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल किया था ना सर। हाँ
तो सर उसमें जैसे कि हमने वहां पे जो अच्छा यहाँ पे पर था, तो देखिए हाँ, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड वाला है ना उसको एज इट इज रख लीजिएगा, है ना। अच्छा ये एलएचएस नहीं वाले को था सर। सिंप्लीफाई करके और आरएचएस वाला क्योंकि आरएचएस वाले में यू स्क्वायर है तो दैट विल बी हेल्पफुल इन डूइंग द आर स्क्वायर पार्ट। अच्छा ये सर, मतलब सर अकॉर्डिंगली सेट करना होगा वैसे हाँ हर प्रॉब्लम देखिए में। आप ये भी कर सकते हैं कि यू सब जगह रख दीजिए, फिर जो फॉर्म आएगा वहां पे जो आएगा उसको जगह आप आर रख दीजिए, है ना। जैसे यहाँ पर भी आप यू स्क्वायर को रख सकते थे ये, है ना। फिर एफ आपका थीटा की फॉर्म में आएगा, फिर वहां से थीटा की जगह आर रख दीजिए, है ना। यस सर। सर यस सर इस सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी से थोड़ा डाउट था सर, सेकंड प्रॉपर्टी। हाँ सर यहाँ सर टॉर्क 0 है सर, हाँ यानी कि सर जैसे दो मास ले लें सर, मून का और अर्थ का ले लें, हाँ तो यानी कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है सर जैसे, यस और सारे ये जो फोर्स है सर वो सेंटर के अबाउट ही सर जा रहे हैं। हाँ तो हाँ सर यानी कि सर टॉर्क यानी कि 0 लग रहा है, हाँ। तो टॉर्क 0 लगेगा तो सर वो फिर स्पिन कैसे कर रहा है सर, वो जैसे अर्थ है तो अपने टॉर्क एक्सिस जीरो के लगेगा इसका मतलब ये नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम जीरो है। टॉर्क जीरो है मतलब कि एंगुलर मोमेंटम का चेंज जीरो है, यहाँ पे नेट टॉर्क है ना। पूरे सिस्टम की एंगुलर बात कर रहे मोमेंटम हैं का यानी कि चेंज जीरो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर यहाँ पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं इसलिए टॉर्क 0 आ रहा है, यदि सेपरेटली मतलब देखें अलग अलग बॉडी को तो वो तो मूव कर सकते हैं। सेपरेटली मतलब सर ये समझ नहीं आ रहा है सर कि मतलब उसको कैसे देखना है सर, ये टॉर्क। नहीं, इसको ऐसा देखना है कि आपको एक पार्टिकल दिया हुआ है वो सेंट्रल फोर्स में है, ये पार्टिकल ये ओ है और यहाँ पर एक पार्टिकल है सेंट्रल फोर्स में, और ये पार्टिकल घूम रहा है और इस पे फोर्स जो है इधर है या इधर है, सीधी बात, ठीक है। तो सर टाउ जैसे जो अभी है आर क्रॉस एफ में जीरो हो जाएगा। सर जैसे यानी कि अभी जो अर्थ ये जो है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स के कारण सर इसमें कोई टॉर्क नहीं लग रहा है उस हाँ बॉडी पे, हाँ लेकिन जो वो घूम रहा है स्पिन कर रहा है तो वो एंगुलर मोमेंटम की वजह से हो रहा है। नहीं तो इस मैंने ये कहा कि घूमेगा नहीं, वो टॉर्क जीरो है इसका मतलब ये थोड़ी घूमेगा नहीं, टॉर्क मतलब ये है कि घूमेगा पर घूमने की गति चेंज नहीं होगी उसकी। अच्छा हाँ सर, ओके। मैंने रेट ऑफ चेंज बोला हाँ ना। जी सर, टॉर्क उससे जीरो इसका मतलब ये थोड़ी कि एंगुलर मोमेंटम जीरो है। एंगुलर हाँ सर मोमेंटम जैसे का जैसे फोर्स में सर वेलोसिटी। वो एक्सेलरेशन 0। एक्सीलरेशन जीरो है इसका मतलब ये थोड़ी कि वेलोसिटी जीरो है। यस सर, वही सर, एक्सीलरेशन जीरो ओके मतलब रेट ऑफ वेलोसिटी जीरो है। जी। सर अगर एक बॉडी पर दो सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी अर्थ है तो उसके ऊपर अभी मून का भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा और जैसे सन का भी लग रहा होगा, हाँ तो तो फिर सर वो सेंट्रल फोर्स नहीं होगा ना, क्योंकि आपका ओरिजिन तो दो हो गए। ओके सर। असाइनमेंट आपका 7 का NAT 1। Consider an elliptically shaped rail PQ, ओके इस तरीके से दिया हुआ है ये। PQ, this is given as 3 meters and this is given as 4 meters, और ये PQ पार्टिकल जो है यहाँ पर जा रहा है, ओके। Consider an elliptically shaped rail PQ in vertical plane with OP is equal to 3 meters and OQ is equal to 4 meters. A block of mass 1 kg, M जो दिया हुआ है 1 kg दिया हुआ है, is pulled along the rail from P to Q with a force of 18 Newton. Force आपका दिया हुआ है 18 Newton. 18 Newton. Which is always parallel to line PQ. देखिए लाइन PQ ये है ना, तो लाइन PQ है तो PQ की डायरेक्शन सपोज ये है n कैप, PQ की डायरेक्शन जो है ये, इसको सही कर लेता हूँ, दिस इज PQ लाइन और PQ की जो डायरेक्शन है सपोज n कैप, है ना। तो फोर्स जो है आपका है 18 न्यूटन हमेशा n कैप में, मतलब PQ डायरेक्शन में,
N cap is what? It is direction of PQ. Assuming no frictional losses, the kinetic energy of the block when it reaches Q is in joules. Okay. ठीक है. तो बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? यहां पर दो फोर्सेस लग रहे हैं वर्टिकल प्लेन में तो है. एक तो फोर्स F जो हम एक्सप्लिसिटली अप्लाई कर रहे हैं और एक और फोर्स है जो कि ग्रेविटी का है. तो ग्रेविटी का फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स है. Yes, sir. ओके. सो वर्क डन by force F is change in total energy. Total energy मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क डन क्या होता है बताइए? F का इंटीग्रल F डॉट dl है ना, और कहां से कहां तक जा रहा है? P से लेकर Q तक जा रहा है, इज इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी. ओके. तो हमसे पूछा है कि ऊपर जाएगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो सपोज यहाँ पे डेल्टा के प्लस डेल्टा पी. अब बताइए फोर्स जो है 18 न्यूटन वाला कांस्टेंट फोर्स है. यस सर. तो इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं फोर्स को, है ना. तो आ जाएगा F डॉट इंटीग्रल dl कहां से कहां तक है? P से लेकर Q तक इज इक्वल टू डेल्टा के. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल क्या है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 है ना. अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या है फाइनल, अगर इसको मैं रेफरेंस पॉइंट मानता हूं. क्या है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो Q पे पहुंचेगा? 4 mg. 4 mg माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0. तो देखिए अब F क्या है? F है 18 n कैप डॉट इंटीग्रल dl क्या होगा? PQ n कैप, है ना. यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? PQ हो गया, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस 4 mg. ये Q माइनस P नहीं होगा क्या? क्या? इंटीग्रल dl की वैल्यू Q माइनस P नहीं होगी? हाँ तो Q माइनस P वही तो है ना, PQ. ओके. कोई वेक्टर है? सर ये क्या हुआ? सर ये जो फोर्स है सर कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है सर, ये जो लगा रहे हैं? फोर्स सिर्फ दिया हुआ है तो हमें पता नहीं है क्या है ये. सर तो Force- कैसे सर ये फोर्स की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू दी कैसे? है सिर्फ. सर तो ये डीएल का सर जो लेंथ होगा सर वो तो डिस्टेंस होगा ना सर, डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा? dl तो डिस्प्लेसमेंट है ना. dl मैंने यहाँ पे वेक्टर है ना dl, तो मान लो यहाँ से चल रहा हूं मैं, तो इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये हुआ ना. सर ये तो तब होता है ना सर जब कंजर्वेटिव फोर्स हो, तो सर नॉन कंजर्वेटिव में तो डिस्टेंस लेते हैं ना. ये कहाँ से बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव में डिस्टेंस लेते हैं? सिर्फ ये डेफिनेशन है यहाँ की इंटीग्रल dl का सम. तो छोटे छोटे वेक्टर्स का सम करेंगे, इनका सम क्या होगा जो कि इनिशियल से फाइनल पे होगा. ओके. तो बताइए PQ की वैल्यू कितनी है? n कैप डॉट n कैप तो 1 हो जाएगा. PQ की वैल्यू कितनी है? 5. ये 3 है ये 4 है, तो PQ की वैल्यू 5 है इंटू 5 माइनस 4 इंटू m कितना है? 1 kg इंटू g is 10 is काइनेटिक एनर्जी फाइनल.
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 into 8 0 और 9 minus 40 is kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी आपका फाइनल हो जाएगा 50 जूल। सर जिस पाथ का एलोंग आपने इंटीग्रेशन किया है सर उस पाथ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है सर, उसका डायरेक्शन फिक्स कैसे? क्या हुआ? जो एन कैप डायरेक्शन लिए है पाथ का हाँ, सर वो कैसे लिए हैं? एल कैप डायरेक्शन पाथ का लिया है मतलब ये वाला। यस सर। तो वही बोल रहा हूँ ना मैं कि पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये डीएल यहाँ पे होगा, फिर डीएल यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, तो ऐसे ऐसे सारे डीएल को जोड़ देंगे तो इनिशियल से फाइनल हो जाएगा। सर समझ गए कि नहीं जैसे वाली बात? सर जैसे आपने 21 क्वेश्चन में कराया था सर, ये बॉक्स वाला सर स्क्वायर बन रहा था, उसमें वो पार्टिकल अपने इनिशियल पॉइंट पे रिटर्न होकर वापस आ रहा था। हाँ हाँ, उस केस में सर आपने वो इनिशियल टू फाइनल डायरेक्ट मतलब क्यों नहीं लिया सर, कि जैसे 0 से 0 तक ले लेंगे उसका और इंटीग्रेशन करा इनिशियल टू नहीं तो फाइनल। वहां पर यहाँ पर क्वांटिटी कुछ अंदर थी ना, यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट इसलिए बाहर ले लिया मैंने, वहां पर फोर्स कांस्टेंट थोड़ी था। वहां पर तो फोर्स देखिए y और x पे डिपेंड कर रहा था, तो इसको मैंने फोर्स को बाहर नहीं ले सकता था इंटीग्रल से। सर तो ऐसा कर लेते ना सर कि एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर में उसका डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप हाँ। और उसका एक्स और वाई वो जो कोऑर्डिनेट्स है इनिशियल और फाइनल वो लिख लेते हैं। हाँ तो वही तो किया था हमने। बट आपने सर वो उसको तोड़ा था ना सर, कि पहले 0 टू डी तक जाएगा, फिर वो एक्स में जाएगा, फिर वो वाई में जाएगा, फिर ऐसे मतलब अलग अलग तो पार्ट में ये डाउट आपका क्लास के बाद ले लूं एक बार मैं? जी सर। तो हाँ। और सर एक डाउट है सर, इसमें हमने जो इसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स माना है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन टोटल एनर्जी का चेंज होता है ना। तो नॉन हमने जो ये कंजर्वेटिव नहीं, मैंने क्या बोला कि जिसकी एनर्जीज पता है उसके लिए तो ठीक है, बट बाकी जितने भी फोर्स है वर्क डन बाय दोस फोर्सेस इज चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ओके सर। अगर हम वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस से करते हैं तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट में पॉजिटिव आता है और आंसर हमारा चेंज हो जाता है। नहीं चेंज नहीं होता। चेंज कैसे होता? लेफ्ट में पॉजिटिव आ जाता है ना तो पोटेंशियल। लेफ्ट में पॉजिटिव आएगा तो उसको इधर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना वो। फिर हम उसे उधर करेंगे ही नहीं ना, क्या हुआ? फिर हम उसे राइट साइड ले जाएंगे ही नहीं ना, हमें तो काइनेटिक एनर्जी नहीं तो बट यहाँ पर फिर आपका आंसर तो वही आएगा, अलग अलग थोड़ी आएगा, चेंज थोड़ी होगा। जो हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया है वो वहीं से तो किया है ना, उसको उधर ले गए तो माइनस वाला पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है माइनस एफ डॉट डी एल। यस। सर क्वेश्चन में सर एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, कि इसमें लिखा हुआ है सर कि a kg of block 1 kg is pulled along the rail of P to Q with force 18 Newton which is always parallel to the line PQ means हाँ, पैरेलल टू द लाइन मतलब लाइन PQ ये है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इधर ही है एन कैप में, इस डायरेक्शन में, मतलब कि इस तरीके से है ना। ये सपोज ये है तो ये है P, ये है Q एंड दिस इज PQ। तो पार्टिकल भले इधर जा रहा है, यहाँ पर है, तब भी फोर्स इधर ही लग रहा है। पार्टिकल यहाँ पर है तब भी फोर्स इधर ही लग रहा है। पार्टिकल यहाँ पर है तब भी फोर्स इधर ही लग रहा है। तो पार्टिकल का जो डायरेक्शन में है फोर्स का वो हमेशा PQ की तरफ है। ठीक है। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर। इसके बाकी हो गए थे आपसे? यस सर एक मतलब कल का क्लास में अटेंड नहीं कर पाया सर शाम को, तो आप बता सकते हैं कि कल शाम को आपने कौन सा असाइनमेंट डिस्कस किया था? असाइनमेंट 7 ही चल रहा था हमारा। ओके सर, तो मतलब 8 अब तक आपने शुरू नहीं किया ना? नहीं 8 शुरू नहीं किया। अच्छा आपने 8.2 कर लिया क्या अभी तक? कर रहे हैं सर उसमें नहीं कुछ सर अभी नहीं किया। 8.1 के डाउट तो लेते हैं मैंने, 8.2 अभी कर रहे हैं आप लोग। ठीक है तो 8 कंप्लीट कर लीजिए, फिर 8 एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है 8.1 8.2 साथ में कर लेंगे क्या? हाँ ओके सर। ओके। और बाकी हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके सर जो आप लेक्चर नोट अपलोड करते हैं वो कर दीजिएगा, कुछ लेक्चर्स छूट गए थे। ठीक है ओके सर वो बता दीजिए सर मुझे। हाँ कौन सा पूछ रहे थे आप, अब बताइए। सर आपने लिखवाया था सर कि जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा सर जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है,
लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसमें हमें पाथ को मतलब देखना पड़ेगा कि कितना पाथ मूव किया है, उसी के हिसाब से वर्क आएगा। हाँ तो नहीं नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ना कि नॉन कंजर्वेटिव में क्या है कि हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या दिक्कत है कि कांस्टेंट फोर्स है तो मुझे लग रहा है सर कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो तभी नहीं तो आपने सर चेंज इन टोटल एनर्जी लिया है। नहीं नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है? ये कोई भी फोर्स हो सकता है ये। सर क्योंकि ऑल फोर्सेस अगर होता तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता, अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो चेंज इन टोटल एनर्जी, और नहीं अगर नहीं, देखिए मैंने आपको क्या लिखवाया था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर है हमारे पास कौन सा फोर्सेस? दो फोर्सेस है यहाँ पे। यस सर। कौन कौन से फोर्सेस हैं? वर्क डन बाय फोर्स एफ प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज डेल्टा के। समझ गया? जी सर। तो वर्क डन बाय एफ इज डेल्टा के माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। यस सर। तो वर्क डन बाय एफ इज डेल्टा के और वर्क डन बाय ग्रेविटी का माइनस क्या होगा? प्लस माइनस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेविटी, यस। है ना। यस सर। तो वर्क डन बाय एफ इज डेल्टा ऑफ टोटल एनर्जी। तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि सिस्टम में जितने भी फोर्सेस हैं, तो वर्क डन बाय जितने भी फोर्सेस है उसमें से देखिए कि कौन कौन से फोर्सेस की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं हम, है ना। तो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, तो उसको इधर ले आइए। बाकी जितने बच्चे उनके द्वारा वर्क डन इज चेंज इन दिस, और जिनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकते तो उसको उस साइड उसको रख उधर दीजिए। रखिए, वर्क डन बाय देम। अच्छा। ठीक है। जी सर। तो फिर वो ओके वर्क सर। डन वाला जो फॉर्मूला होगा उसमें फिर वो मतलब नहीं कर सकते ना ऐसा कि पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर वो हाँ, डिस्प्लेसमेंट, ये वाला आप ये वाला याद रखिए, सिंपल। तो इनिशियल टू फाइनल ही लेंगे फिर उसको। हाँ, ठीक। है ना। वो हम स्क्वायर वाले केस में क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि इंटीग्रल एफ डॉट डीएल में इस केस में जो है एफ कांस्टेंट है, तो एफ को बाहर निकाल लिया हमने। यस सर। एफ 18 एन कैप है ना, कांस्टेंट यस है। सर। वहां पे हम एफ को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, इसीलिए अलग अलग कर रहे थे। ठीक है। सर बट यदि वही ऐप सर कंजर्वेटिव हो जाता है, डेल क्रॉस ऐप से हम जीरो कर देते, तो फिर तो वो मतलब पूरा घूम गया था ना सर वो हाँ मतलब हाँ, अगर वही तो वाला जीरो। एफ अगर कंजर्वेटिव होता तो जीरो आता, सही कहा आपने, क्योंकि क्लोज पाथ पे जीरो होता है वर्क डन बाय, है ना। यस सर। ठीक है। तो ये वाला बेसिक रखिए यार कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर जिन जिन फोर्सेस की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं उनको इधर ले आइए और बाकी का वर्क डन इधर है। ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। सर यस। एक स्टूडेंट किसी ने पूछे थे कि अगर मतलब अर्थ पे जब फोर्स लग रहा है वो मून भी लगा रहा है और कुछ सन भी लगा रहा है, मतलब हाँ। और मतलब ये एक सेलेस्टियल बॉडी है उस पे हाँ। और अदर में सेलेस्टियल फोर्स लगा रहे हैं इन मतलब एट अ टाइम। हाँ तो सर ऐसी कंडीशन बताया कि ये सेंट्रल फोर्स मतलब नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अर्थ के ऊपर दो दो लग रहा है ना फोर्स, तो वो वहां पर ओरिजिन अगर सन को लें तो एक और एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है ना, तो एफ डज नॉट डिपेंड ऑन एफ आर कैप। यस सर। तो सर ऐसी कंडीशन में क्या मतलब कि जो हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं तो सेंटर फिर ग्रेविटेशनल में सर हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे सेंट्रल फोर्स को उस नहीं कंडीशन नहीं, में? ऐसी कंडीशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, इसीलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अर्थ का मून से मोशन थोड़ा कम इफेक्ट होता है, क्योंकि मून का मास काफी कम है, तो इफेक्टिवली हम सन के अराउंड लेते हैं अर्थ को। तो सर एक्चुअली में तो हम लोग नेट ले लेंगे तो फिर ना कि मतलब जो हाँ, मून तो वही लगा बोल रहा रहा है हूँ ना कि उसको। मून का फोर्स काफी कम है। यस सर, तो उसको हम लोग मतलब नेट फोर्स लेंगे। मून का फोर्स काफी कम है तो उसको हम नहीं लेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, जब अर्थ का मोशन कैलकुलेट करेंगे। ओके सर। ठीक है। ओके जी, तो कल मिलते हैं फिर, ठीक है। कल अगर क्लास नोट्स अपलोड करवा दीजिए। क्या हुआ? नोट्स अपलोड करवा दीजिए। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैंने आपको नोट्स कहाँ तक दे दिए? किस किस लेक्चर तक दे दिए? नंबर मतलब क्या था? 32 कि 33? पता नहीं सर, देखना पड़ेगा।
9 समथिंग दिखा रहा है। ये एक बार टोनी जोस ये पूछ रहे हैं कि शेयर कर दीजिए, कोई शेयर कर दीजिए इनको टेलीग्राम लिंक एक बार। ट्वेंटी नाइन तक आपने भेजा वो। कहाँ तक? 29। 29 के बाद में नहीं किया मैंने। नो सर। सर वहीं तक है। ओके ठीक है, एक बार कोई लिंक शेयर कर दो इनको, टोनी को।